Good morning once again. Today we will discuss the instructions branching instructions of microprocessor 8085 and machine control instructions of microprocessor 8085. That is branching instructions, sometimes we can also call them as control transfer instructions. So we will discuss the control transfer instruction as well as the machine control instruction. Branching instruction branching can be of instruction can be of three type. One is if we are jumping, if we are transferring the control from one memory location, one instruction to another instruction within the program, then it is known as jump operation and it is done by jump instruction. If we are transferring the control from the main program to some subroutine program, then it is termed as call operation procedure, and that is done with the help of call instruction. And if we are branching, if we are transferring the control from the subroutine program to the main program, then it is termed as return operation and done by return instruction. What is that actually? Suppose there is a program. This program is written from memory location 2000 onwards. Suppose there is a program which is written from a memory location 2000 onwards. There is an instruction here, 2001, there is another instruction, and like this, 2010, there is an instruction, 2011 and 2020. The program is up to here, right? Suppose here there is a jump instruction, and if we say jump 2015, इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से जो 2015 मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर जंप कर जाएगा. दैट मीन्स इसके बाद इससे आगे आने वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की बजाय माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आकर के इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स इफ दिस इज द केस, दैट मीन्स अगर हम यहीं इसी प्रोग्राम में 2000 से लेकर 2020 तक ऊपर नीचे कहीं पर भी जंप कर रहे हैं, then that is done with the help of jump instruction, right? If इस मेन प्रोग्राम को छोड़ करके कहीं किसी दूसरी लोकेशन, मान लीजिए 2050 मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अप टू 2060 तक एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो अगर हम यहाँ से जंप करके इस मेन प्रोग्राम में कहीं से भी जंप करके अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं, दैट मीन्स इस प्रोग्राम की ये जो रेंज है, इस रेंज को छोड़ करके हम यहाँ पर जा रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज कॉल ऑपरेशन एंड दिस प्रोग्राम इज नोन एज सबरूटीन और समटाइम्स प्रोसीजर. सबरूटीन और समटाइम्स प्रोसीजर. और अगर जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, अगर हम यहाँ से इस मेन प्रोग्राम से या मेन प्रोग्राम किसी भी लोकेशन से अगर हम यहाँ पर वापस जा रहे हैं, वापस मेन प्रोग्राम पर जा रहे हैं, देन इट इज नोन एज रिटर्न ऑपरेशन एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिटर्न इंस्ट्रक्शन. सो देयर आर थ्री ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, थ्री टाइप ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन: जंप, कॉल एंड रिटर्न. Jump, call and return. All these three, they can be conditional, they can be unconditional. If they are conditional, then the condition will be on the basis of 4 flag bits, that is carry, 0, parity and sign. इनके होने और इनके ना होने के basis पर there are 8 different conditions. So we can use 8 conditions, and hence the conditional jump, conditional call or conditional return instruction, they will be of 8 type.
what they are, what their syntax is. सबसे पहले हम बात करते हैं अनकंडीशनल जंप. अनकंडीशनल जंप के लिए इंस्ट्रक्शन है हमारी JMP 16 बिट एड्रेस. ये 16 बिट एड्रेस बताता है कि किस जगह पर जंप करना है, टू विच मेमोरी लोकेशन इट इज टू बी जंप्ड. कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर करना है. जैसे हमने कहा जंप 2015, इसका मतलब 2015 जो मेमोरी लोकेशन है यहां पर जंप कर जाएगी. प्रोग्राम लिखते टाइम ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो 2011 2012 ये मेमोरी लोकेशन है. जंप इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑफ 3 बाइट. Jump instruction that is of 3 byte. The first byte is the opcode, the second byte is the lower order operand, and the third byte is the higher order operand. As we know, एक मेमोरी लोकेशन पे एक ही बाइट आती है. इसका मतलब ये जंप 2015 इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड इन 3 मेमोरी लोकेशन. दैट इन 2010 पर जंप आ गया, 2011 पे 15 आएगा एंड 2012 पे 20 आएगा. उसके बाद 2013 2014 इन इंस्ट्रक्शन पर अगली आने वाली इंस्ट्रक्शंस होंगी. सो ये यहां ना लिख करके ये यहां लिखा जाएगा इस तरीके से. ठीक है. सो इट इज जंप इंस्ट्रक्शन, इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. देन कम्स जंप कंडीशनल. Jump conditional के there are 8 formats. There are 8 formats of jump conditional and they are on the basis of the 4 flag bits. They are JC. इसका मतलब है jump if carry. Carry आई है तो jump करो. And यही 16 बिट का एड्रेस. या JNC. jump नहीं आई है तो carry नहीं आई है तो jump करो. सो कैरी के होने ना होने के बेसिस पे हम कंडीशन रख सकते हैं. तो हमने दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर फॉर्म होगी. ऐसे ही JZ जंप इफ 0 एंड 16 बिट एड्रेस, जंप इफ नो 0 16 बिट एड्रेस, जंप पैरिटी E1 16 बिट एड्रेस, जंप पैरिटी ओड 16 बिट एड्रेस, जंप माइनस 16 बिट एड्रेस, जंप पॉजिटिव 16 बिट एड्रेस. JS और JNS नहीं होता. कहीं JS और JNS लिखो. जंप माइनस इफ माइनस 0 जंप पॉजिटिव to 16 bit address. Right? These 16 bit address are the where the jump operation will perform, where the control will be transferred. Right? In conditional, if the condition is true, microprocessor find out whether the condition is true by checking the flag register. वहाँ पर flag bit को देखेगा. वो flag bit अगर सही है, जो कंडीशन रखी गई, जैसे मान लीजिए JC कहते हैं jump if carry, इसका मतलब microprocessor will check the carry flag. अगर carry flag set है तो jump होगा. अगर carry flag set नहीं है तो jump नहीं होगा. That means jump will perform only if the condition is true. जैसे मैंने यहाँ रख दिया JC 2015. इसका मतलब 2015 पे जंप हो जाएगा प्रोवाइडेड कैरी फ्लैग इज सेट. अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है उस केस में इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा. कंडीशन ट्रू है तो यहां से जंप करके यहां आ जाएगा. इस इंस्ट्रक्शन से जंप करके यहां आ जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधे सीधे अगली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा. So it is the jump instruction. Next comes the call instruction. सबरूटीन क्या होता है? कोई ऐसा प्रोग्राम या अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, बार बार आ रही है. जैसे हमने कुछ प्रोग्राम लिखे थे, जैसे डिले का प्रोग्राम है. ठीक है, डिले प्रोग्राम है. तो वो डिले प्रोग्राम मान लीजिए प्रोग्राम में कई बार आ रहा है. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम में कई बार आ रही है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली इन द मेन प्रोग्राम, we write those set of instructions separately.
और जब कभी भी यहाँ पर उनकी ज़रूरत है यहाँ से उनको यहाँ बुला लिया जाए। देखिए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम ने तो उसको उतनी ही बार पर एग्जीक्यूट करना है जितनी बार वो आ रहा है, बट हमारा जो लिखने की जो वो है, लिखने की बार बार रिपीट लिखने की जो है वो हमारी बच जाती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट हो रही है उनको हम यहाँ पर मेन प्रोग्राम में लिखने की बजाय हम सेपरेट लिख लेते हैं। ये जो सेपरेट लिखा गया है इसको बोलते हैं सब रूटीन प्रोग्राम और प्रोसीजर, और इसको यहाँ बार बार यहाँ पर मेन प्रोग्राम में बुला कर लाना कहलाता है कॉल करना, and that is done with the help of call instruction. So what is call? CALL, call, and यहाँ पर 16-bit address। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2010 पे हमने दे दिया कॉल, कॉल के बाद 16 बिट का एड्रेस है तो ऑब्वियस है कॉल इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कॉल 2050, इसका मतलब कॉल 2050H, इसका मतलब है कि भाई इस प्रोग्राम को जो कि यहां पर उसको कॉल करना है। अब 2050 2 बाइट है तो ये अगली लोकेशन पे 50 और उससे अगली लोकेशन पे 20 लिखा होगा। सो व्हाट माइक्रो प्रोसेसर विल डू, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ये आता है, माइक्रो प्रोसेसर विल ट्रांसफर द कंट्रोल हियर। माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन को में जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट जब ये खत्म हो जाता है तो वापस अपने मेन प्रोग्राम को रिज्यूम करता है। मेन प्रोग्राम को रिज्यूम कहाँ से करता है? यहाँ से, इस लोकेशन से रिज्यूम करता है। सो जैसे ये आया यहां से यहां चला गया, इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद अपने यहां आ गया, राइट, इट विल रिटर्न बैक। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है कि भाई इसको यहां से यहां पर आना है, वापस कहां आना है, इसका कैसे पता चलेगा? हाउ माई सिस्टम विल नो कि इसको वापस यहां आना है। हम मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि भाई आप जाइए मार्केट से ये सामान लेके आना है, तो आप मार्केट चले जाएंगे, वहाँ पर परचेज करेंगे, सामान लेंगे और वापस आ जाएंगे। वापस क्यों आ जाएंगे आप, कैसे आ जाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है वापस कहाँ आना है, यू नो द एड्रेस। बट अनलेस अनटिल इफ यू डोंट नो द एड्रेस देन व्हाट विल हैपन, यू कैन नॉट कम बैक। सो यहाँ पर भी देयर मस्ट बी ए वे बाय विच द सिस्टम कैन एंश्योर कि भाई सब रूटीन एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पर आएगा। सो व्हाट माइक्रो प्रोसेसर डू इज कि ये जब यहां से यहां जा रहा है, सब रूटीन पर जा रहा है, तो जाने से पहले, यहां जाने से पहले ये जो रिटर्निंग एड्रेस है, कौन सा है रिटर्निंग एड्रेस? ये जो रिटर्निंग एड्रेस है, इस रिटर्निंग एड्रेस को स्टैक के ऊपर सेव कर देगा। It will save the returning address on top of the stack before jumping to the call location. So ये एरो यहां से यहां आने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि यहां से ये एक हमारी मेमोरी पर जाएगा, उस मेमोरी पर कहीं पर हमने स्टैक को डिफाइन किया होगा, हमारा एसपी होगा, ये मान लीजिए एसपी की लोकेशन है उस पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो अब ये यहां से यहां पर जाएगा और फिर वो जो डाटा स्टैक के टॉप पर डाटा स्टोर होने का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होगा। SP will be decremented by 1, it will become SP minus 1, and the lower order address, that means higher order address, that will store at that location, that is 20, then SP will again decrement it by 1, and then the lower order address that is stored there. So the returning address is saved now at top of the stack, and then from here ये सेव करने के बाद then it will come to this location. So call instruction is an example where the system is using the stack. जैसे हमने stack को कहा था, stack क्या है? Stack is a memory, user defined memory which is shared by both the user as well as the programmer. Sorry, user as well as by the system. User कैसे use करता था? Push and pop instruction के जरिए,
पुश पॉप XTHL, ये 3 इंस्ट्रक्शन थी जिससे कि स्टैक के डाटा को वो ऑपरेट करता था इधर उधर लाने ले जाने के लिए, ठीक है। और सिस्टम कब कर रहा, अब यहां पर देने को तो हमने कॉल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर सिस्टम को ये इंश्योर करना कि वापस आना है, तो वो कॉल इंस्ट्रक्शन में ही अपने रिटर्निंग एड्रेस को सेव करते हुए स्टैक का टॉप का यूज करता है, राइट। जब यहां से यहां जाकर के जब वापस आ रही है, ये वापसी की जो इंस्ट्रक्शन होती है ये होती है RET, जिसको बोलते हैं हम रिटर्न। सो रिटर्न इज द थर्ड टाइप ऑफ जंप विच इज फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू द सबरूटीन प्रोग्राम, सबरूटीन प्रोग्राम टू द मेन प्रोग्राम वापस। दैट मीन्स व्हेन दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, अब यहां खत्म हो गया तो वापस इसने अपने मेन प्रोग्राम पे आना है। अब यहां पर मेन प्रोग्राम पर आने के लिए इसको कैसे पता चलेगा कि कहां पर आना है, इसको मालूम है कि भाई इसको यहां आने से पहले सिस्टम ने रिटर्निंग एड्रेस टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर सेव किया हुआ है, तो वहां जाना है। सो ये यहां से यहां सीधे जंप नहीं करता, ये यहां से टॉप ऑफ द स्टैक पे जाता है, यहां से ये एड्रेस पिक करता है और जहां एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पे चला जाता है। रिटर्न के आगे कोई एड्रेस नहीं लिखा होता, क्योंकि क्यों नहीं लिखा होता, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप ऑफ द स्टैक पर सेव कर दिया गया है। सो रिटर्न इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो जंप, कॉल एंड रिटर्न, जंप एंड कॉल बोथ आर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जंप और कॉल के साथ हम कहाँ जा रहे हैं वो एड्रेस दिया जाता है। रिटर्न में वो एड्रेस नहीं दिया जाता, वो पहले से ही टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर सेव होता है, वहां से वो लेगा। जिस तरह जंप कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों थी, ऐसे ही कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप और रिटर्न, कॉल एंड रिटर्न दोनों कंडीशनल और अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल तो ये हो गई, और कंडीशनल में क्या होता है कि कंडीशन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैग बिट्स, जैसे सी कॉल इफ CC, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी, call if 0, call if no 0, call if parity even, call if parity odd, call minus, call positive। और 16 बिट का एड्रेस, जो ये एड्रेस था 16 बिट का, ये एड्रेस हर एक में ये होगा। सो दीज आर द 8 इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉल। कंडीशन ट्रू होगी तो ही वापस ही जाया जाएगा, यहाँ RET की बजाय कंडीशन ट्रू होगी तो यहां से यहां आया जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही रिटर्न की RC, RNC, RZ, RNZ, RPE, RPO, RM and RP। RM, R minus, return minus, if minus, return if positive। So these are the jump, call and return instruction, they are the branching instruction। return is 1 byte, इसके यहाँ एड्रेस नहीं होता है क्योंकि एड्रेस यहाँ से लेना होता है। नेक्स्ट इज मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, वेरियस इंस्ट्रक्शंस जो कि मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। उनमें सबसे पहली है RST इंस्ट्रक्शन, RST N, बल्कि N is the subscript here। this the value of N is equal to 0 to 7। so there are 8 RSTs instructions, that is restart instruction। in fact these instruction, they are, you can call them, they are the software interrupt instruction, and they are RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RST6, RST7। restart 1 2 3 4 5 7।
रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन आते ही क्या होगा, माइक्रो इट इज इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। अभी इंटरप्ट की बात करेंगे, ठीक है। हमने इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट हमने पढ़ा था। उस हार्डवेयर इंटरप्ट में हमने पढ़ा था कि भी ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, RST INTR और INTA बार, दोज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट पिन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। These are software interrupt instructions of microprocessor. अब इंटरप्ट में होता क्या है, अगर हम यहां पर इंटरप्ट के प्रोसेस को समझें तो क्या होता बेसिकली, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इतने में पढ़ते पढ़ते एकदम से बेल बजती है। बेल बजती है तो आप क्या करोगे, जो किताब से आप पढ़ रहे थे उस किताब में आप एक बुक मार्क लगाओगे, या पेज को मोड़ोगे, या धागा लगाओगे, या जो वट, या उल्टी करके रख दोगे, जो भी है उसको, बुक को बंद करोगे, राइट। और फिर आप क्या करोगे, यू विल रिकॉग्नाइज द बेल, यू विल रिकॉग्नाइज द बेल। व्हाट दैट मीन, भाई मैंने कहा बेल बजी, अब वो बेल मोबाइल की भी हो सकती है, वो बेल हमारी डोर बेल भी हो सकती है, वो बेल हमारे मोबाइल की भी, लैंडलाइन फ़ोन की भी हो सकती है। सो अनलेस अनटिल यू रिकॉग्नाइज दैट बेल, आप क्या करोगे, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन आपका आपके बेडरूम में रखा हुआ है, आपका लैंडलाइन फ़ोन जो ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, कॉल बेल है तो दरवाज़ा। सो अगर जहाँ जो सी बेल है आप उस जगह पर जाएंगे, दरवाजे की बेल है तो आप दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजे वहाँ जाएंगे, वहाँ जो भी आया है उसको एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन करने के बाद आप वापस अपने स्टडी रूम में आएंगे, जहाँ आप किताब में पढ़ रहे थे उस किताब को वापस से खोलेंगे और उस पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पर कि आपने सस्पेंड किया था पढ़ना, उस किताब का बुक मार्क जहाँ लगाया था वहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से आप पढ़ रहे थे, आप इंटरप्ट हुए, इंटरप्ट होने के बाद आपने उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आप वापस आकर अपना काम रिज्यूम किया। दैट इज व्हाट एन इंटरप्ट इज। सेम इज हियर, जैसे ही आप कोई इंटरप्ट, चाहे वो हार्डवेयर से आए चाहे सॉफ्टवेयर से आए, जैसे ही वो इंटरप्ट आता है, माइक्रो प्रोसेसर अपना करंट काम छोड़ करके, करंट सीक्वेंस को छोड़ करके, करंट प्रोग्राम को छोड़ करके किसी जगह पर जाएंगे। यहां पर जिस जगह पर जाएंगे जहां पर इंटरप्ट आया, एक पर्टिकुलर डिफाइंड लोकेशन होगी, वो जो डिफाइंड लोकेशन है वो कहलाती है वेक्टर्ड लोकेशन। वेक्टर्ड लोकेशन या इंटरप्ट वेक्टर्ड लोकेशन, यू कैन से इंटरप्ट वेक्टर्ड लोकेशन। दैट मीन्स RST1 आया, या RST1 आया तो RST1 आते ही इसके कोर्सपोंड्स कोई वेक्टर्ड लोकेशन होगी। जैसे हर एक बेल के लिए एक वेक्टर्ड लोकेशन थी, टेलीफोन की घंटी बजी है तो ड्राइंग रूम में जाना है, मोबाइल की घंटी बजी तो बेडरूम में रखा हुआ मोबाइल वहां जाना है, डोर बेल बजी तो डोर पे जाना है। सो देयर इज अ वेक्टर लोकेशन एसोसिएटेड विद दैट बेल। सेम इज हियर, ये भी एक बेल की तरह ही काम हो रहा है, जैसे ही बेल बजी वो जाएगा वेक्टर लोकेशन पे जाएगा। यहां वेक्टर लोकेशन क्या है, मेमोरी लोकेशन। माइक्रो प्रोसेसर ने सेट असाइड कर दिया सर्टेन मेमोरी लोकेशंस। In 8085 there are certain memory locations which are set aside for that purpose. Those memory locations, they are defined as the vectored location for that interrupt. Those defined locations are the vectored locations for that particular interrupt. Each interrupt is associated with
8 interrupt locations. How microprocessor will calculate those locations? यहाँ पर जो RST 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 0 है, तो 0 multiply by 8 will be the vectored location for RST 0, that is 0 0 0 0 H. RST 1 1 multiply by 8, that is 0 0 0 8 H. RST 1 की वेक्टर लोकेशन कौन सी है? 0 0 8 H. 2 की क्या है? 0 0 1 0 H. 3 की क्या है? 0 0 1 8 H. 4 की 0 0 2 0 H. 5 की 0 0 2 8 H. 6 की 0 0 3 0 H. 7 की 0 0 3 8 H. Simply multiply by 2 by 8, 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8. Then these will be the vectored location in the memory map of it. That means इसका मेमोरी मैप में माइक्रोप्रोसेसर की जो मेमोरी मैप है, ये जो मेमोरी मैप है, यहाँ पर ये मेमोरी लोकेशन 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 and then 0 0 0 8. So these 8 locations के बाद हमारा दूसरी वेक्टर लोकेशन स्टार्ट हो जाती है अगले 8 तक. सो आप कह सकते हो एक तरीके से मेमोरी में बेसिकली इट इज इन रोम एरिया माइंडेड. यहाँ पर ये जनरली होता है. सो ये जो लोकेशंस है दिस 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 एंड दिस, दे आर फॉर RST 0 इंटरप्ट. अब इन लोकेशन में RST 0 के कोरस्पोंड्स जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, जो प्रोग्राम है जिसको इंटरप्ट करने के बाद वो इमरजेंसी प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट करना है, दैट इमरजेंसी प्रोग्राम विल रिजाइड हियर. अब आपको होगा कि भाई कुछ जरूरी है वो प्रोग्राम इतना ही छोटा हो क्योंकि 8 मेमोरी लोकेशन पे आ जाए, 8 बाइट का ही हो? नो. अगर ऐसा है तो यहां पर मान लीजिए 4 0 8 0 9 0 F3 इस टाइप से. तो यहां पर इस मेमोरी लोकेशन पे जो ये लिखा हुआ है, दिस विल बी द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन. जो इंटरप्ट प्रोग्राम है उसका एड्रेस होगा. दैट मीन्स जैसे ही RST 0 आया, माइक्रो प्रोसेसर यहां जंप करेगा. RST 0 आया, इट विल जंप हियर. It will get this address from here and jump to a memory location that is 8040. और इस मेमोरी लोकेशन पे यहां पर आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा. सो एक तरीके से आप कहिए जैसे ही ये इंटरप्ट आता है, आते ही माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट करता है कि इसकी वेक्टर लोकेशन कौन सी है, वो उसकी वेक्टर लोकेशन पे जंप करता है. जंप करने के बाद वहां पर क्या मिलता है? वहां पर मिलता है उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस. उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को वो यहाँ से लेता है और उस मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाता है. और जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर ISR हो जाता है. राइट. एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए हमारा प्रोग्राम 20 से हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ, ये चल रहा था, यहां पर RST 0 आ गया. RST 0 मान लीजिए 2010 आ गया. इंटरप्ट हुआ. RST 0 इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. राइट. जब इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, दैट मीन्स अगर ये है, इसको एग्जीक्यूट कर देगा,
अगर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट होने के बाद क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर विल बी इंटरप्टेड, राइट, it will suspend its current operation, go to that emergency operation program, execute that program and comes back to the original program and resume it. इसका मतलब उसने वापस आना है। वापस आने का मतलब क्या है कि जब ये RST 0 आया, RST 0 आया तो इसने यहां पर जाना था, it has to jump to this particular memory location, बट इसने तो अपना वापसी का रास्ता भी 2011 पर को भी सेव करना था। तो ये यहाँ से RST 0 आते ही, RST 1 2 3 वट एवर इट बी आते ही यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगा, अपनी वेक्टर लोकेशन पर नहीं जाएगा। वेक्टर लोकेशन पर जाने से पहले ये स्टैक पे जाएगा और स्टैक लोकेशन पे अपना रिटर्निंग एड्रेस जैसे कॉल में दिया था, जैसे कॉल में किया था वैसे ही रिटर्निंग एड्रेस स्टैक के ऊपर लोड कराएगा कि सो ये फिर यहाँ जाएगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जब वापस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ पर फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी RET, और ये RET इंस्ट्रक्शन आने के बाद ये वापस स्टैक पर जाएगा और यहाँ पर जो एड्रेस है इस 2011 लोकेशन का ये लेकर के वापस आएगा। इट इज समथिंग लाइक काम किया, आए, किताब खोली, किताब खोलने के लिए एड्रेस चाहिए था, वो जो बुक मार्क आपने लिखा हुआ था, लगा रखा था या वो पेज मोड़ रखा था, दैट इज समथिंग लाइक कि आपने स्टैक के टॉप पर एड्रेस सेव कर रखा था कि कहाँ जाना है वापस। वो काम आप किताब में क्या किया आपने, बुक मार्क लगाना या पेज को मोड़ देना या किताब को उल्टी करके रख देना, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो दैट इज द ऑपरेशन ऑफ दिस होल थिंग, इंटरप्ट की। एंड दीज आर द वेक्टर लोकेशन ऑफ दिस इंटरप्ट। सो इंटरप्ट जैसे हमने क्लासिक हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, एज ट्रिगर्ड हो सकता है, लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है, मास्केबल हो सकता है, नॉन मास्केबल हो सकता है, ऐसे ही वेक्टर्ड हो सकता है, नॉन वेक्टर्ड हो सकता है। वेक्टर्ड का मतलब है कि हर एक इंटरप्ट के कोरस्पॉन्ड्स देयर इज ए वेक्टर्ड लोकेशन इन द मेमोरी। At that memory location, that memory location, microprocessor will get the address of the interrupt service routine. And at this interrupt service, address of this interrupt service over interrupt service routine, that is lying, that is stored. So vectored and non-vectored. 8085 में except INTR, all interrupt, whether they are software, they are hardware, all are vectored interrupt. So ये 8 interrupt थे software, they are vectored. And अब बात आ जाती है जो RST 7.5, 6.5, 5.5, they are also vectored interrupt. उनका नाम ये क्यों रखा RST तो ये लिखा था, उनका भी लिखा और साथ में दिया 0.5। वो 0.5 क्यों दिया, क्योंकि उनकी वेक्टर्ड लोकेशन इनके बीच में है। जैसे RST 5.5, इसका मतलब इसकी वेक्टर्ड लोकेशन क्या है, इसकी वेक्टर्ड लोकेशन है इसके और इसके बीच में हाफ वे, दैट इज 0 0 2 C। ये इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस था, 8 का। अब इसके और इसके बीच में कितने का रह गया, 4 का। इसमें RST 6.5, that is 0 0 0 0 3 4, and ऐसे ही RST 7.5, and this is 0 0 3 CH। ट्रैप को आप यहां ले सकते हैं, ट्रैप। So you can say trap is something like RST 4.5, RST 4.5 के तौर पर कह सकते हो कि अगर इसी तर्ज पे उसका नाम लिखा जाता तो क्या लिखा जाता, RST 4.5। These interrupts, these are maskable interrupt, these are unmaskable, non-maskable interrupt, right? So microprocessor। अब बात आती है
इंटरप्ट के मास्केबल होने की और नॉन मास्केबल होने की। मास्केबल मीन्स विच कैन बी मास्क, नॉन मास्केबल आर ट्रैप विच कैन नॉट बी मास्क। अब अगर मास्केबल है तो दीज आर मास्केबल, जब इन पिनों पे इंटरप्ट नहीं आना चाहिए। तो बात आती है हाउ दे आर मास्क्ड, हाउ दे आर मास्क्ड। द मास्केबल इंटरप्ट कैन बी मास्क्ड and unmasked by two instructions available in 885. They are known as DI and EI. DI, that is disable interrupt, EI, that is enable interrupt. DI and EI, disable interrupt and enable interrupt. अगर मान लीजिए मेरा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मेरा इम्पोर्टेंट है, दिस प्रोग्राम इज माई इम्पोर्टेंट वन, या इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर जिसमें कि मैं इंटरप्ट नहीं होना चाहता। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने यहाँ पर DI कमांड दे दी। सो ऑल द मास्केबल इंटरप्ट दैट इज 7.5, 6.5, 5.5 दे आर डिसेबल्ड, दे विल नॉट इंटरप्ट इट। देन अगर मान लीजिए ये मेरा सेक्शन था विच इज आई डोंट वांट टू बी इंटरप्टेड, तो ठीक है, ये सेक्शन ओवर हो गया एंड अब मैं अनेबल कर सकता हूं। आई कैन से EI, अनेबल इंटरप्ट, सो अनेबल कर दिया, इज राइट। सो अनेबल इंटरप्ट हो गया। इसके बाद जो प्रोग्राम रहेगा मास्केबल इंटरप्ट, दे आर अनेबल्ड, राइट। सो इट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, their interrupt vector location, vectored interrupt and enabling or disabling the maskable interrupts of 8085. अब यहाँ पर जो EI और DI है वे इन मास्केबल इंटरप्ट को मास्क कर सकते हैं और अनमास्क कर सकते हैं। देन देयर कम्स ए क्वेश्चन, अगर हमने सेलेक्टिवली मास्क करना हो तो, सेलेक्टिवली मास्क करना, देन व्हाट विल हैपन, then we will have that option also, and for that we have an instruction for that, and that instruction is known as SIM instruction, set interrupt mask, set interrupt mask। दो इट इज फॉर, नाम जो है वो है सेट इंटरप्ट मास्क, मतलब मास्क लगता है कि मास्क के इंटरप्ट के संबंधित मास्क करने के लिए, बट इट इज a multifunctional instruction, it is a multifunctional instruction। multifunctional instruction मतलब this instruction can perform more than one task। what are the, this instruction can be used for setting the mask on the maskable interrupt as well as for serial IO communication। अभी तक हमने ढेर सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, move, STX, SAT, and so in and out. So by those all instructions, data is being communicated from one location to another location। memory से microprocessor memory में, microprocessor से IO से micro, the data flows on the D0 to D7 line। We have not studied any single instruction by which the data can be transmitted or received serially through SID and SOD। this instruction is that first instruction which we will discuss। we will create a word, 8 बिट का एक सब वो बिट पैटर्न बनाएंगे। इंडिविजुअल बिट ऑफ दैट बिट पैटर्न विल डिसाइड ए फंक्शन, उसका 1 या 0 होना किसी एक काम को दर्शाएगा एंड उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर काम होगा। कैसे होगा उसके लिए पहले वो बिट पैटर्न क्या है। दिस इज द बिट पैटर्न ऑफ द SIM इंस्ट्रक्शन। दिस इज नोन एज serial data enable and this is known as SOD। these two bits they are used for serial output data। this is known as R7.5। it is don't care, it is mask set enable, it is M7, M6, M5।
So these are the bit patterns. ये हमारी RST 7.5, 5.5, 5.5 के लिए है. If this bit is 1, any of these bit is 1, then वो particular interrupt mask हो जाएगा. ये मास्किंग करने से पहले हमें मास्किंग को अनेबल करना पड़ेगा. मास्क सेट अनेबल. That means इनका 0 या 1 होने का मीनिंग तभी है जब ये 1 हो. अगर ये 0 है तो ये 1 हो या 0, इससे हार्डली मैटर्स. दिस इज डोंट केयर. दिस इज अगर RST 7.5 को रीसेट करने के लिए. एंड दीज टू ये सीरियल डाटा को अनेबल करने के लिए है. और ये जो बिट होगी, जो भी डाटा आप बाहर भेजना चाह रहे हो, जो बिट आप बाहर भेजना चाह रहे हो SOD लाइन के थ्रू, we will make this bit that way. जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं we will prepare this and then we will prepare this word, we will load this word into the accumulator and then simply say sim. जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं write a program to transmit a logic 0 through SOD line. SOD लाइन के थ्रू लॉजिक 0 भेजना है. तो आप क्या करोगे? आप इसके हिसाब से बिट पैटर्न बनाओगे. क्या भेजना है? 0. सो यू विल मेक दिस बिट 0. इसको 1 करना पड़ेगा क्योंकि अनेबल करना है आपको. सीरियल डाटा अनेबल करना है तो इट शुड बी 1. और रेस्ट हमें कोई लेना देना नहीं है. ये 0, ये 0, MSC को 0 करना पड़ेगा. देन ये 0, ये 0, ये 0. सो a bit pattern that is formed as 40H. We will load this 40H. We will say into the accumulator. We will say MVI A, 40H. And then simply say sim. Sim कहते ही microprocessor, whatever be available in the accumulator, it will read this content of this accumulator as per this and do accordingly. So यहाँ पर उसने देखा 0 है तो 0 को बाहर भेज देगा SOD लाइन को. So it will make the SOD pin as low. अगर 1 भेजना होता तो we can make it 1. So उस केस में ये C0 हो जाता. Thing is same. अब ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूं write a program to mask 7.5 and 5.5. Reset 7.5. Write a program to mask 7.5 and 5.5 interrupt and reset 7.5. So now अब मैंने क्या करना है? मास्किंग करनी है. किसकी मास्किंग करनी है? 7.5 and 5.5 की. So accordingly I will prepare the word. अब हमें सीरियल डाटा नहीं करना. So it must be 0. और इसके बाद ये बिट चाहे कुछ भी हो, 0 या 1 हो, I can make it 0. R इसको रीसेट करना है, so I will make it 0. ये भी डोंट केयर है, डोंट केयर. इसको सेट करना पड़ेगा, मास्किंग अनेबल करनी है. इसको मास्क करना है और इसको मास्क करना है. That means I will make it 1, I will make it 0, I will make it 1. So now what is this? 0D, 0DH. Right? And then again I will say MVI A, 0DH. And then simply say sim. So it is. अब ये माइक्रोप्रोसेसर इस डाटा को इसके हिसाब से पढ़ेगा एंड एक्ट करेगा. Right? So it is your sim instruction which is used to selectively mask or unmask the maskable interrupt, as well as it is used for data, serial data output, SOD. There is another instruction which is known as RIM instruction, that is read interrupt mask. Read interrupt mask. That means masking को read करना. That means it is something like it is reading the status कि हमने किसको मास्क किया हुआ है, किसको मास्क नहीं किया हुआ है. What is our masking status?
कौन इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो गया, कौन पेंडिंग में है। ठीक है, एक तरह से पेंडिंग इंटरप्ट्स के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर दिस इज it is serial input data. It I7, I6, I5. It is MSE. It is M7, M6, M5. ये तीन बताते हैं। Mind it, this word is now read only. We cannot write anything into it. अब वो डाटा तैयार करके अकोमोडेटर में भेज कर तब नहीं करेंगे, अब तो हम पढ़ेंगे। सो इट्स डिनोट्स विच ऑफ दीज थ्री RST 7.5, 6.5, 5.5, विच आउट ऑफ दीज थ्री आर इंटरप्ट मास्क्ड। अगर इनमें से कोई सा भी वन है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मास्क किया हुआ है, इसका मतलब मास्किंग अनेबल की हुई है। इफ इट इज वन, इट मीन्स मास्किंग इज अनेबल्ड। दीज थ्री इट शोज कि इनमें से कोई सा पेंडिंग है, दैट मीन्स इंटरप्ट आए हुए थे RST 7.5, 6.5, 5.5, ये इंटरप्ट अभी पेंडिंग है। जो भी वन है, इसका मतलब वो पेंडिंग इंटरप्ट है। एंड दिस इज सीरियल इनपुट डाटा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम था 2000 ऑनवर्ड, ये स्टोर किया हुआ यहां पर कहीं पर, और मैंने यहां पर दे दिया रेम, यहां पर लिख दिया रेम। रेम लिखने के बाद अक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, सपोज अक्यूमुलेटर का कंटेंट अक्यूमुलेटर का कंटेंट मान लीजिए 2 D है, 2DH आया। वी फाइंड द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर इज 2D। तो अब इस 2D को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इस 2D को हम इसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। माइंड इट, रिम इंस्ट्रक्शन देने के बाद द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर विल change as per the status of the maskable interrupts, and if it happens that it becomes this one, so what we will interpret from that, we elaborate this 0 0 1 0, then it is D, that is 1 1 0 1। ये हुआ। अब इस जीरो का मतलब है इनपुट, जो सीरियल इनपुट हो रहा है वो इनपुट लाइन जो है वो 0 है। इसका मतलब है इन तीन का कि भाई इसमें R7.6 पेंडिंग है, RST 7.5 और 5.5 नहीं है पेंडिंग, सिर्फ R6.5 अभी पेंडिंग बची हुई है। मास्किंग कर रखी है, और किसको मास्क कर रखा है? RST 7.5 को मास्क किया हुआ है और RST 5.5 को मास्क किया हुआ है। RST 6.5 को मास्क नहीं किया हुआ और वो पेंडिंग में, राइट। ये भी हो सकता है। अगर ये होता तो इसका मतलब है 7 और 5 को मास्क किया हुआ है, 7 को मास्क किया हुआ, इन दोनों को मास्क नहीं किया हुआ, इनमें से ये अभी पेंडिंग है। इसका मतलब 5.5 जो है अभी एग्जीक्यूशन में है। सो दिस वे द रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड। सो रिम is a read only instruction, same is something like the control instruction, उसमें हम डाटा तैयार करके अक्यूमुलेटर में डालेंगे और यहाँ पर रिम लिख करके अक्यूमुलेटर में जो डाटा उसको इसके तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमारा HLT आ जाता है। HLT इज हॉल्ट, माइक्रो प्रोसेसर विल हॉल्ट, सस्पेंड, काम को बंद कर देगा, हॉल्ट हो जाएगा और एंटर इनटू द वेट स्टेट, वेट स्टेट में एंटर कर जाएगा और वो वेट स्टेट से रीसेट करने के बाद ही बाहर आएगा, रीसेट करने के बाद ही वेट स्टेट से बाहर आएगा। वेट स्टेट से एक बार और तरीके से बाहर आ सकता है, अगर होल्ड रिक्वेस्ट आ जाए माइक्रो प्रोसेसर के पास तो भी वो वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा, होल्ड को रिकॉग्नाइज करेगा और उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाएगा होल्ड को, और उसके बाद वापस वेट होल्ड स्टेट में चला जाएगा।
सो अल्टीमेटली हॉल्ट से बाहर आने के लिए यूजर को यूज करने के लिए रीसेट करना जरूरी है. देयर इज अनदर that is NOP. This instruction is used read as no operation. That means microprocessor will execute this instruction but it will not execute anything. ना तो कहीं से कहीं डाटा ट्रांसफर करेगा, ना किसी चीज को कंट्रोल करेगा, ना ही लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ना ही कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म. तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोप्रोसेस दिस इंस्ट्रक्शन इज सिंपली टू वेस्ट द टाइम और सिंपली टू प्रोड्यूस द डिले ऑफ दिस मच टाइम. जितनी टाइम में इसको एग्जीक्यूट करने में माइक्रोप्रोसेसर को लगता है, इसका मतलब एक तरीके से अगर आपने उतना डिले देना है, सिर्फ उतना कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में जो लगे, तो ये उतना डिले देने के लिए काफ़ी है. तो एनओपी इंस्ट्रक्शन है. सो एनओपी इज नथिंग बट एक तरीके से सिंगल इंस्ट्रक्शन डिले. एनओपी इज नथिंग बट सिंगल इंस्ट्रक्शन डिले. इट इज समथिंग लाइक माइक्रोप्रोसेसर वहाँ गया, एनओपी इंस्ट्रक्शन पढ़ा, एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं किया. सो इट इज एनओपी. सो दीज आर द all of the microprocessor 8085 instructions.